So many of you might be thinking at this point in time that what would be your plan of action for the RBI Grade B upcoming exam. So we're expecting the notification in July. The exam might happen in August last or September early. Now we have maximum 3 months at our disposal, maybe lesser than that. So in next 3 months, how can you prepare for RBI Grade B? Before I proceed, I want to tell you about the free course that we have. So in case you are new to RBI and you're confused about a lot of things, this free course can help you get started. यहाँ free course में you will get to know in detail about eligibility pattern and the trend of vacancies over the years. So if you have doubt like are final year students eligible, is distance education applicable as eligibility? So all these doubts will get cleared in this free course. You will get access to previous year questions of past 5 years, both phase 1, phase 2, objective, descriptive, along with answers, which is very important for you to analyze कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, कितना डेप्थ में आ रहे हैं, कितना करंट आ रहा है, कितना स्टैटिक आ रहा है. दैट विल हेल्प यू गेट स्टार्टेड एंड आपको पता लग जाएगा कि चीज़ों को कितनी डेप्थ में पढ़ना है. फिर बहुत सारे लोगों को डाउट होता है दैट इज के क्वांट रीजनिंग बैंकिंग से कैसे अलग है, सी सैट से कैसे अलग है, कितना डेप्थ में पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना है. सो कंप्लीट स्ट्रैटेजी एंड ओरिएंटेशन, sources for quant reasoning or ESIFM, right, for all other subjects you will get in this free course. The link to join this free course is given in the description of this video. उस पे click करें, इसको join करें, and I'm sure that you will thoroughly enjoy going through that free course, जिससे आपको एक अलग मोटिवेशन मिलेगा आरबीआई ग्रेड बी को प्रिपेयर करने के लिए. नाउ हम 3 मंथ स्टडी प्लान क्यों डिस्कस कर रहे हैं? जैसा मैंने बताया नोटिफिकेशन जुलाई में आएगा, एग्जाम सितंबर में हो सकता है या अगस्त लास्ट में हो सकता है. सो इफ आई स्टार्ट फ्रॉम 15th of June काउंटिंग माई डेज, आई मीन 3 months इज द मैक्सिमम, otherwise you might get 70-80 days in between that. But there has to be certain prerequisites that you need to know about preparing of RBI Grade B exam. So you cannot start preparing for RBI Grade B exam from scratch and expect to clear this year. मतलब अगर आपने कभी भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की है, क्वांट रीजनिंग नहीं पढ़ा है, आप कॉमर्स फाइनेंस बैकग्राउंड से भी नहीं हैं, आपने आरबीआई भी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, then I think in such a scenario it might not be easy to cover such vast syllabus, understand the needs of the exam, and read relevant part. So that might be difficult. So I would say if somebody has covered certain grounds के आपने जैसे बैंकिंग की तैयारी की है तो आपको क्वांट रीजनिंग आता होगा, यूपीएससी की तैयारी की है तो आपको थोड़ा बहुत सी सेट से क्वांट रीजनिंग में हेल्प मिल जाएगी, ईएसआई में हेल्प मिल जाएगी, करंट अफेयर्स में हेल्प मिल जाएगी, अगर आपका एमबीए बैकग्राउंड है तो क्वांट रीजनिंग में हेल्प मिल जाएगी. सो देयर हैज टू बी सर्टेन ओवरलैप विद व्हाट यू हैव डन इन द पास्ट एंड व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी फॉर आरबीआई ग्रेड बी. फ्रॉम कंप्लीट स्क्रैच, फ्रॉम जीरो to selection in next 3 months is going to be very difficult. You have to be extraordinary in terms of intelligence and you should have enough time at your disposal to achieve that feat. ठीक है, तो चलिए अब टाइम टेबल या स्टडी प्लान क्या है. सो आई ट्राई टू डिवाइड दैट इनटू ब्लॉक्स. हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि आप मंडे टू फ्राइडे मिनिमम 4 घंटे पढ़ेंगे और वीकेंड्स पे आप 8 से 10 घंटे की सिटिंग बनाएंगे. अगर ये बहुत ज़्यादा लग रही है तो मे बी यू कैन स्टार्ट टारगेटिंग द नेक्स्ट ईयर, नॉट दिस ईयर. तो ये मैंने एक 15 जून से 6 जुलाई का ब्लॉक बनाया है अराउंड 3 वीक्स. देन 7 जुलाई से 3 अगस्त अराउंड 4 वीक्स का एक ब्लॉक है. देन अगेन कुछ 3 वीक्स का ब्लॉक बनाया है एक अगस्त में. एंड देन 25th अगस्त टिल द एग्ज़ाम, वी डोंट नो द डेट ऑफ द एग्ज़ाम, तो एक वो ब्लॉक है. एंड देन आफ्टर फेज 1 टिल फेज 2 एग्ज़ाम, वॉट एवर टाइम यू गेट, दैट इज़ अनदर ब्लॉक. तो अब ब्लॉक्स में देखेंगे, आई एम ट्राइंग टू फोकस parallelly on phase 1 and phase 2. But till your phase 1 we should be more inclined to cover phase 1 because अगर आपका phase 1 अच्छा नहीं है तो that is the stage where you will have maximum probability of getting chucked out. phase 2 मैं बता रहा हूँ relatively आसान है phase 1 से, in terms of competition, in terms of the effort you should be putting in. तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस प्लान में जो जो है. तो सबसे पहले जो हमारा ये फर्स्ट 3 वीक्स का ब्लॉक है, इसमें मैनेजमेंट आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए बिकॉज मैनेजमेंट इज़ द ईजीएस्ट एंड द मोस्ट स्कोरिंग अमंग ऑल दी सब्जेक्ट्स इन आरबीआई ग्रेड बी प्रिपरेशन. तो मैनेजमेंट के
ऑब्जेक्टिव की बात करें, सो दीज आर द चैप्टर्स इन योर सिलेबस, दीज आर वेरी generic chapters. I mean, you can just read and understand, though it might be confusing, you would have to read multiple times. Moreover, the syllabus is limited. Only these chapters are there. There are no current affairs. Right. So I would request they आप ये सारा पढ़ें, इसमें से कुछ भी ना छोड़ें, because when I say FM management is very scoring, I am expecting you to score 40 or 45 out of 50 हेड इन मैनेजमेंट. सो देर इज नो स्कोप कि आप एक दो चैप्टर छोड़ जाएं और उनमें से क्वेश्चन आएंगे तो उनको भी छोड़ देंगे, देन यू विल नॉट बी एबल टू अचीव दिस टारगेट. मैनेजमेंट कैन बी कंफ्यूजिंग एट टाइम्स, तो इन 3 वीक्स में आपको मल्टीपल रिविजन्स करनी होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज करें टू मेक श्योर दैट यू आर एबल टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स यू आर लर्निंग. मैनेजमेंट में या तो 1 मार्कर क्वेश्चन आते हैं विच आर वेरी इजी, 2 मार्कर क्वेश्चन आते हैं पैराग्राफ बेस्ड. इट्स काइंड ऑफ अ केस स्टडी जिसके ऊपर आपको 3-4 क्वेश्चंस आएंगे, वो भी आप कर लेंगे. और कुछ आरसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वेयर क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड इटसेल्फ फ्रॉम द पैराग्राफ, यू नीड नॉट हैव एनी सेपरेट नॉलेज. तो ये भी बहुत आसान है. पिछली बार काफी लोगों ने ये पैराग्राफ पढ़कर छोड़ दिए थे. दे थॉट दैट दे हैव नॉट रेड दिस कंटेंट एज पार्ट ऑफ सिलेबस, but actually the questions asked could be solved from the paragraph itself, from the information in the paragraph itself. तो इन क्वेश्चंस को जरूर ध्यान में रखिएगा जब आप पेपर दें. बाकी डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन आसान आते हैं. देखिए ओवरऑल अगर आप देखेंगे आपके एफएम के पेपर में 6 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं. इन 4 में से मैं जनरली बोलता हूं कि आप 3 मैनेजमेंट के करो, 1 फाइनेंस का करो. तो मैनेजमेंट डिस्क्रिप्टिव शुड बी डन वेरी थॉरली, बिकॉज यहां से अगर आप डिस्क्रिप्टिव खींच गए तो आपको फाइनेंस के डिस्क्रिप्टिव का डर नहीं होगा. उसमें से आपको सिर्फ 1 क्वेश्चन करना रह जाएगा 3 क्वेश्चंस में से. तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे बहुत इजी हैं. जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे बहुत इजी क्वेश्चंस आया है जो आप यहाँ से आराम से पढ़ के कर सकते थे. फिर बैरियर्स टू कम्युनिकेशन पे बहुत इजी क्वेश्चन आया है जो डायरेक्टली सिलेबस हेड से है. कोड ऑफ कंडक्ट पे क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्टली सिलेबस हेड से. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सिलेबस हेड से आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर आते हैं. बाकी मैनेजमेंट के सिलेबस को स्टिक करना चाहिए नहीं. देखिए अब सिलेबस इज ऑलवेज इंडिकेटिव नॉट एग्जॉस्टिव. सिलेबस में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं या एरियाज हैं जो मेंशन नहीं होते हैं, बट देयर कैन बी क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम इट. So should you be covering that? I would say yes and no. Yes if you have time, no if you don't have time. So the first priority should strictly be given to something which is mentioned in syllabus. For example, motivation में ये 7-8 theories mentioned है. तो first priority should be to cover these theories. Now there would be 5 or 6 more theories which are apart from these theories. You should be doing them only at the end if you have first covered these 7 or 8 theories which are directly given in the syllabus. क्योंकि वो तो syllabus में लिखी हुई है, हमें वो पहले करनी है. और मैनेजमेंट के लिए आप ये बुक्स पढ़ सकते हैं एल एम प्रसाद की प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बाय एल एम प्रसाद, एंड बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस बाय बी एन घोष. दीज 3 बुक्स विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू कवर दी होल सिलेबस. ठीक है. तो मैनेजमेंट और फाइनेंस हमें ज़रूर कवर करना है फेज़ 1 से पहले. ये मैनेजमेंट का मैंने आपको बताया, फाइनेंस का भी मैं आपको बताऊंगा. फिर आते हैं हम रीजनिंग पे. देखिए एसटी का मतलब है सेक्शनल टेस्ट. यहाँ पे अब रीजनिंग में एग्जाम में यू गेट 60 क्वेश्चंस एंड यू गेट 45 मिनट्स. नॉर्मली इन दीज 45 मिनट्स यू विल नॉट बी एबल टू रीड 60 क्वेश्चंस. मैक्स आप कितने 30 to 35 क्वेश्चंस उठा लेंगे. सो आई ऑलवेज सजेस्ट रेदर देन ट्राइंग टू कवर एवरीथिंग, आप रीजनिंग के सेलेक्टेड चैप्टर्स कर लो, जिसमें आई वुड लाइक यू टू फोकस ऑन ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, रिवर्स सिलोजिज्म, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, रैंकिंग, इनइक्वालिटी. ठीक है. ये चैप्टर्स में से मोटा मोटा 60 में से आपको 30 क्वेश्चन आ जाएंगे. The rest 30 would come from puzzles and sitting arrangements. So though I am trying to tell you that these should be given the first priority, but please understand कि ये जो puzzles and sitting arrangement है, बाकी 30 क्वेश्चन इसी में से आने वाले हैं. तो अगर आप puzzles और sitting arrangement छोड़ के जाएंगे 30 क्वेश्चन आप उठा भी नहीं पाएंगे. So ये तो करना ही है. उसके बाद अगर टाइम मिला तो इसको भी थोड़ा देख लेना. And in exam also first try to pick the questions from these priority topics rather than starting with puzzles. पजल शुरू करके 15-20 मिनट भी पजल पे लग गए और सॉल्व नहीं हुआ तो फिर नंबर नहीं आएंगे रीजनिंग में. कट ऑफ भी क्लियर होने के फांदे पड़ जाएंगे. ठीक है. रीजनिंग की कट ऑफ भी आप देखें पिछले साल 15 गई थी, इस साल शायद थोड़ी और बढ़ जाए, शायद 17-18 हो जाए. सो आई वुड सजेस्ट कि आप 20 से 25 मार्क का टारगेट रखें आउट ऑफ 60 इन रीजनिंग. First do the priority topics, then the puzzles and the sitting arrangement, and follow the same pattern in your exam.
गिव लॉट ऑफ सेक्शनल टेस्ट, हैविंग नॉलेज विल नॉट सफाइस। काफी लोगों को लगता है कि हमने काफी पढ़ लिया है तो हम एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, या काफी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं विदाउट टाइम लिमिट हम एग्जाम में भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। नहीं, एग्जाम में मेजर कॉन्स्ट्रेंट आफ्टर योर नॉलेज इज द टाइम। तो बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट दीजिए, टाइम लिमिट में अटेम्प्ट करना सीखिए, क्वेश्चन को सेलेक्ट करना सीखिए, एंग्जाइटी प्रेशर को मैनेज करना सीखिए। इसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू सॉल्व लॉट ऑफ सेक्शनल टेस्ट। और हर चैप्टर जो आप यहाँ करेंगे, ये जो मैंने प्रायोरिटी टॉपिक्स दिए हैं, हर चैप्टर पे डू सॉल्व लॉट ऑफ क्वेश्चंस, at least 150 questions per chapter you should be solving, and these 150 questions should be of different level and different difficulty level, मतलब type, difficulty means easy, moderate, high, so that you are well prepared, एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए आप उसको उठा के कर लें। और रीजनिंग की ये बुक है जो आप फॉलो कर सकते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय डॉक्टर RS अग्रवाल। ठीक है, अब बात आती है करंट अफेयर्स की। सो करंट अफेयर्स का पढ़ने का तरीका सेम है, चाहे हम मई के करंट अफेयर्स पढ़ें, चाहे जून के, चाहे जुलाई के। सो हैव डिस्ट्रीब्यूटेड योर करंट अफेयर्स अक्रॉस द टाइम टेबल दिस प्लान। ठीक है, बट अभी मैं एक जनरल स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा जो आपको करंट अफेयर्स के लिए फॉलो करनी है, वो हर ब्लॉक में ही फॉलो करनी है, हर एक ब्लॉक में। ठीक है, फर्स्ट ब्लॉक, सेकेंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक, हर एक ब्लॉक में आई एम ट्राइंग टू मेक यू स्टडी 45 डेज ऑफ करंट अफेयर्स। तो यहाँ पे हम 1 मई से 15 जून तक पढ़ेंगे, फिर 16 जून से 30 जुलाई तक पढ़ेंगे, और यहाँ पे पूरे अप्रैल के और 1 अगस्त से 15 अगस्त तक के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। सो ईच ऑफ दिस ब्लॉक यू आर स्टडिंग 45 डेज ऑफ करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स मतलब जीए जो आपका फेज 1 में आता है, उसकी एक जनरल स्ट्रैटेजी मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम में सबसे ज्यादा वेटेज आरबीआई नोटिफिकेशंस का होगा, इससे ही रिलेटेड है फाइनेंस करंट अफेयर्स। सो दीज both these areas contribute around 30 out of 80 marks to your preparation। ये आपका P1 एरिया होगा, प्रायोरिटी 1। स्कीम्स एंड रिपोर्ट्स, ये भी अच्छे वेटेज के आ रहे हैं, अराउंड 20 to 25 मार्क्स कंबाइंड, ये आपका P2 एरिया होगा। ESI current affairs, that is the current affairs related to economic and social issues syllabus of phase 2, this would be your P3। Then your normal current affairs like sports, awards, obituaries, important days and their themes, military exercises, defense equipments, some Nobel Peace Prize and all that would be priority 4। जनरली लोग इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं P4 जो मैं बता रहा हूँ, बट दिस इज नॉट स्कोरिंग एट ऑल इन RBI ग्रेड बी फेज 1। द क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम दिस एरिया आर वेरी अनप्रडिक्टेबल। देन स्टैटिक I would say is P5, but ये हो जाएगा if you will cover your phase 2 well, then ये क्वेश्चंस जो आते हैं वो फेज 2 के सिलेबस में से ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं जो आप कर लोगे। ठीक है, एंड प्लीज रिमेंबर सिंस आई हैव शोन यू एज P1 इटसेल्फ के आरबीआई नोटिफिकेशंस और फाइनेंस करंट अफेयर्स आएंगे, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट द करंट अफेयर्स आज इन आरबीआई आर डिफरेंट फ्रॉम बैंकिंग। You please don't rely on banking magazines or sources for RBI, because यहाँ पे syllabus भी अलग है और depth that you are required to study for each of the mentioned topics is also different. In number of months, if I want to tell you, आपको 3 to 5 months of current affairs पढ़ने हैं। 3 is must, 5 is desired। ठीक है, बिकॉज अगर आप देखेंगे प्रीवियस एग्जाम में 5 months प्रिसीडिंग योर एग्जाम देयर वर अराउंड 65 मार्क्स ऑफ करंट अफेयर्स आउट ऑफ 80, और अगर मैं 3 months का लूं तो इट वाज अराउंड 55 आउट ऑफ 80। सो इमीडिएटली प्रिसीडिंग 3 months इज ऑल्सो गिविंग अ गुड कॉन्ट्रीब्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन दैट टू क्लियर द कट ऑफ्स एंड स्कोर ओवरऑल गुड सेट ऑफ मार्क्स। सोर्सेज की बात करूं तो 4 सोर्सेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप देखेंगे पिछले एग्जाम को एनालाइज करेंगे, पीआईबी से 21 क्वेश्चंस आए थे, आरबीआई वेबसाइट से भी अराउंड 18 to 20, लाइव मिंट और हिंदू से अराउंड 10 ईच। सो क्वेश्चंस आर इवन आस्क्ड फ्रॉम अदर सोर्सेज लाइक बिजनेस स्टैंडर्ड, हिंदू, बिजनेस लाइन, विच वर नॉट कवर्ड इन लाइव मिंट और हिंदू। बट यू कैन नॉट रीड एवरी सोर्स एंड यू आर नॉट सपोज के अगर 80 क्वेश्चन आ रहे हैं आप 80 के 80 जानते होगे। सो ट्राई टू फोकस ऑन दीज 4 सोर्सेज, पीआईबी, आरबीआई वेबसाइट, लाइव मिंट एंड हिंदू। ठीक है, इनको अच्छे से पढ़ो। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो 3 से 5 महीने का पढ़ो, आई एम श्योर कि आप अगर अच्छे से रिवाइज करेंगे आप जीए में अच्छा स्कोर ले आएंगे।
ये हमारे कुछ सेशंस भी हैं जो हमारे यूट्यूब पे होते हैं, फाइनेंस 360 डिग्री करंट अफेयर्स, जिसमें हम आरबीआई नोटिफिकेशंस कवर करते हैं। इसको कृतिका मैम लेती हैं, ठीक है। देन देयर इज सीटी 360 डिग्री, ठीक है। सीटी 360 डिग्री इज अगेन बेस्ड ऑन जीए प्लस ईएसआई करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम में आते हैं। इसको दिवांशु सर लेते हैं, ठीक है। तो ये सुबह 10 बजे होती है, हफ्ते में 3 दिन। ये आई थिंक सुबह 7 या 8 बजे होती है, 8 8 AM हफ्ते में 3 दिन, ठीक है। यू प्लीज चेक टाइमिंग्स फ्रॉम यूट्यूब, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट टाइमिंग्स, ठीक है। और गवर्नमेंट स्कीम्स ये भी हफ्ते में 3 दिन होती हैं। वाई दिस पेन, हाँ, ये भी हफ्ते में 3 डेज होती हैं हफ्ते में, ठीक है। तो अब ये सारे जो सेशंस हैं इनको हमारे यूट्यूब पे ट्रैक कर सकते हैं, रेगुलरली होते हैं, वहाँ से भी आप पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। Now coming out of the finance, so the next block is from 7th July to 3rd August, which is 4 weeks. ठीक है. Now finance is very vast. It might not be possible for somebody to cover it in 4 weeks. तो हम डिस्कस करेंगे कैसे आप कुछ शॉर्टकट्स लगा सकते हो। टारगेट स्कोर यहाँ पे 35 से 40 रहना चाहिए आउट ऑफ 50। 40 वुड बी टफ, बट हाँ 35 इज समथिंग दैट यू शुड बी टारगेटिंग, इट इज अचीवेबल। फाइनेंस में स्टैटिक और करंट का मिक्सचर आता है 50-50। आउट ऑफ 50 मार्क्स इन फाइनेंस 25 मार्क्स ऑब्जेक्टिव आएगा, 25 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। इट्स नॉट अ रूल बट ट्रेडिशनली इट हैपेंस लाइक दिस। इन दी ऑब्जेक्टिव आउट ऑफ 25 मार्क्स स्टैटिक और करंट का अराउंड 50-50% वेटेज रहता है। डिस्क्रिप्टिव में थोड़ा करंट का वेटेज ज़्यादा रहते हैं स्टैटिक से। तो सबसे पहले हम स्टैटिक के बारे में देखते हैं। स्टैटिक में दो दी सिलेबस इज वास्ट, बट 4 वीक्स में आप इतने ही चैप्टर्स करने की कोशिश कीजिए जो यहाँ पे हैं, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो रेशियोज, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट, रिस्क मैनेजमेंट, इन्फ्लेशन, डेरिवेटिव्स, बॉन्ड, फंक्शंस ऑफ आरबीआई, फिस्कल पॉलिसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंकिंग सिस्टम एंड एनबीएफसीज। अगर टाइम कम है तो ये छोड़ देना, ये थोड़े टेक्निकल हैं, बट बाकी सारे कर लेना। और जहाँ जहाँ न्यूमेरिकल आएंगे, ड्यू बेसिक न्यूमेरिकल्स ओनली, एग्जाम में न्यूमेरिकल नहीं आ रहे हैं तो ज़्यादा न्यूमेरिकल पे जोर मत देना। करंट की बात करूं तो यहाँ पे 3 चीज़ें आपको करनी है, या 4 मैं बोलूँगा। आरबीआई नोटिफिकेशंस, न्यूज़ और रेगुलेशंस बाय सेबी, एंड एनी रेगुलेशन और न्यूज़ रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। टाइम हो तो यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी कर लेना, बट आई थिंक ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है। देन देर आर 4 to 5 रिपोर्ट्स। एनुअल रिपोर्ट बाय आरबीआई, यूनियन बजट ऑलरेडी हो गया इधर हमारा। Trends and progress by RBI, financial stability report by RBI, currency and finance report by RBI. All these are 4 reports by RBI which are asked in your finance, current affairs in your finance section. ठीक है, ये करंट अफेयर्स हो गए। अब स्टैटिक में जो भी चैप्टर मैंने आपको बोले थे, ये वाले जो इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से जनरली क्वेश्चन फंस जाता है। जैसे लास्ट ईयर ये डेरिवेटिव्स पे क्वेश्चन आया था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट from other chapters they can also ask you, so if you have time you can just glance through other chapters, otherwise those chapters are very generic. I think you will be able to write if you are stuck to write on a question from those chapters. बाकी करंट में डिस्क्रिप्टिव में दो ही चीज़ें हैं, एक तो एडिटोरियल्स है, आपको लाइव मिंट और हिंदू में एडिटोरियल्स, सॉरी इकोनॉमिक टाइम्स में एडिटोरियल्स पढ़ने चाहिए। और रिपोर्ट्स में वही रिपोर्ट्स जो मैंने अभी आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बताई थी, दी सेम रिपोर्ट्स नीड्स टू बी अंडरस्टूड एंड रेड इन अ डिटेल्ड मैनर, बिकॉज उसमें से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। ये बुक्स हैं फाइनेंस की, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग एंड बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बोथ आर बाय मैकमिलन एजुकेशन। Bharti Pathak, Indian Financial System, very bulky book, I would not recommend. Some chapters like Union Budget, Inflation can be read from Indian Economy by Ramesh Singh. बाकी आरबीआई की वेबसाइट पे जाके FAQ सर्च करोगे तो उसमें से भी काफ़ी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा आपके सिलेबस टॉपिक से रिलेटेड। नाउ बुक्स करंट अफेयर्स के लिए मैंने आरबीआई नोटिफिकेशन बोला था, ये आरबीआई वेबसाइट से हो जाएगा। सेबी के लिए लाइव मिंट पढ़ो, सेबी की वेबसाइट पे मत जाओ, ज़रूरत नहीं है, लाइव मिंट काफ़ी है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की न्यूज़ के रिलेटेड लाइव मिंट में चीज़ें मिल जाएंगी। यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे की समरी पीआईबी से मिल जाएगी। तो ये सारी सोर्सेज मैंने आपको डिटेल में बता दी हैं, ठीक है। और ये जो सारी रिपोर्ट्स मैंने बताई थी आरबीआई की, ये आपको आरबीआई की वेबसाइट पे मिल जाएंगी।
क्वांट के लिए same strategy that I told you in reasoning. Quant में you get 25 minutes and 30 questions. You cannot solve 30 questions in 25 minutes. They are very lengthy. At the max, you would be able to read 10 to 15 questions. So again, I am of the firm opinion that do not try to read everything, especially if you are short on time. Try to cover limited chapters, but do them well. तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जिनको मैं प्रायोरिटी पे रखना चाहूँगा। टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, परसेंटेजेस, रेशियो प्रपोर्शन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, जिनको मैं P1 बोल रहा हूँ। ठीक है, इनको मैं P1 बोल रहा हूँ। इनको हमें अच्छे से करना है। हर चैप्टर पे मुझे 150 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, डिफरेंट टाइप के और डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल के। क्वांट में मुझे टारगेट स्कोर 8 या 10 रखने, 10 ही रखेंगे तो बेटर होगा मेरे हिसाब से। वो एक सेफ स्कोर होगा मेरे हिसाब से। और बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट दीजिए। जस्ट डू नॉट रिलाई ऑन सॉल्विंग चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, बिकॉज व्हेन यू सॉल्व सेक्शनल टेस्ट यू विल गेट टू नो हाउ टू सेलेक्ट क्वेश्चंस, हाउ टू लीव क्वेश्चंस इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व देम ऑन टाइम, हाउ टू मैनेज योर टाइम, हाउ टू मैनेज योर एंग्जाइटी। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, सिर्फ नॉलेज से काम नहीं चलेगा। और ये क्वांट की अच्छी बुक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कैट बाय अरुण शर्मा। इसको आप ज़रूर पढ़ें। और इसमें लेवल 3 क्वेश्चंस हैं, वो थोड़े टफ हैं। लेवल 1 लेवल 2 आसान है। लेवल 2 तो ज़रूर करना है आपको, वो तो एग्ज़ाम में आता ही है। लेवल 3 के आप जितने क्वेश्चंस कर पाएँ उतने आप सॉल्व करें। नाउ करंट अफेयर्स की मैंने स्ट्रैटेजी आपको बता दी थी, कौन कौन से एरियाज कैसे कैसे करने हैं। सो सेकंड ब्लॉक में आप 16 जून से 30 जुलाई के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। ये अनदर 45 डेज ऑफ करंट अफेयर्स आपको ये ब्लॉक में पढ़ने हैं। फिर जो आपका 3 अगस्त से 24 अगस्त वाला ये जो ब्लॉक है, अराउंड 3 वीक्स, यहाँ पे आप क्वांट रीजनिंग और प्रैक्टिस कीजिए। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर इट वुड बी। स्टार्ट सॉल्विंग फुल लेंथ मॉक टेस्ट, बिकॉज बाय दिस टाइम यू वुड हैव कवर्ड लॉट ऑफ करंट अफेयर्स ऑल्सो। और इस ब्लॉक में अनदर 45 डेज के करंट अफेयर्स हम करेंगे, जिसमें हम अगस्त के करंट अफेयर्स करेंगे 1 अगस्त टू 15 अगस्त के, 15 डेज ये हो गए, एंड 30 डेज फॉर अप्रैल करंट अफेयर्स। ठीक है। फिर 25 अगस्त से एग्ज़ाम तक जितना भी मुझे टाइम मिलेगा, बोनस टाइम है, मतलब इसमें मुझे बहुत दबा के रिवीजन करनी है, बहुत फुल लेंथ मॉक टेस्ट को देना है, एनालाइज करना है, और न्यू करंट अफेयर्स करने हैं। मैंने यहाँ पे करंट अफेयर्स 15 अगस्त तक पढ़े थे। उसके बाद वाले जितने भी करंट अफेयर्स हैं टिल 1 वीक बिफोर द एग्ज़ाम। तो मेरा एग्ज़ाम अगर 10 सितंबर को है, मैं 3 सितंबर तक के करंट अफेयर्स करके जाऊंगा। यहां तक एग्जाम में पूछे जाते हैं 1 वीक बिफोर द एग्जाम। सो 15 अगस्त से 3 सितंबर तक के जो करंट अफेयर्स हैं वो मैं इस ब्लॉक में डेली डेली पढ़ता जाऊंगा। ठीक है। और अभी आपको लग रहा होगा सर मेरी ईएसआई की तो प्रिपरेशन ही नहीं हुई, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की भी नहीं हुई, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की भी नहीं हुई। ठीक है, बट आई थिंक कहते हैं कि धीरे धीरे करो, थोड़ा थोड़ा करो, तो बात बन जाएगी। नहीं तो फिर इट वुड बी टू मच ऑन योर प्लेट एंड यू विल नॉट बी एबल टू फोकस ऑन एनीथिंग। तो हालांकि हमने फेज 1 के बाद बहुत कुछ छोड़ा है, बट आई स्टिल फील दैट यही आपका बेस्ट चांस है। कम चीज़ें करो, अच्छे से करो। और अगर आपने फेज 1 से पहले एफएम कवर कर लिया, ईएसआई के कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स हैं जो आप कर सकते हो, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी मैनेज हो सकती है। और फेज 2 में जो करंट अफेयर्स आते हैं वो आपने फेज 1 में ऑलरेडी पढ़ लिए होंगे, बस 1 महीने का जो गैप होगा फेज 1 और फेज 2 का, वो नए वाले करंट अफेयर्स आपको पढ़ने होंगे। सो ये टाइम टेबल कोई बेस्ट टाइम टेबल नहीं है, आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे कमियां होंगी, बट इन माय व्यू एक एवरेज बच्चे के लिए जिसकी थोड़ी सी तैयारी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, दिस इज़ द बेस्ट शॉट यू कैन हैव। डू नॉट ट्राई टू रश थ्रू थिंग्स कि जल्दी जल्दी सब कुछ करूंगा, फिर कुछ नहीं होगा। 1 महीने बाद भी आप यही क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, एम आई प्रिपेयर्ड और कैन आई प्रिपेयर। तो बेस्ट है कि आप इस चीज़ को फॉलो करें जो मैंने आपको यहाँ बताई है। ठीक है। और जाते जाते मैं आपको अपने कोर्सेज के बारे में बताना चाहूँगा। से हमारे कुछ कोर्सेज हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ। हमारी वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज के अंदर जाएंगे तो ये गोल्ड कोर्स है विच इज़ फेज़ 1 प्लस 2 प्लस इंटरव्यू, जिसमें आपको कंप्लीट फेज़ 1 से लेके इंटरव्यू तक की प्रिपरेशन मिलेगी। सिल्वर कोर्स इज मेनली फॉर फेज़ 2 एंड इंटरव्यू। इसमें आपको फेज़ 1 का क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश नहीं मिलेगा, बट फेज़
1 के करंट अफेयर्स आपको सिल्वर कोर्स में भी मिल जाएंगे, क्योंकि जो करंट अफेयर्स फेज 2 के लिए हम देंगे वही करंट अफेयर्स फेज 1 से बिल्कुल सेम है, ओवरलैप करते हैं. Then there is a test series. So if you are preparing by yourself and you need chapter wise tests, full length mock tests, sectional tests, descriptive tests which are evaluated, then this is the test series for you, जिसमें आपको बहुत अच्छे से एनालिसिस मिल जाएगा अपनी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस का, अपनी रिलेटिव पोजीशन का, कि आप लोगों के मुकाबले कहाँ स्टैंड करते हैं, और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की डिटेल्ड एवेल्युएशन भी मिल जाएगी. सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई एंड. थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक. अच्छे से फॉलो करना. 3 महीने सुनने में कम लग रहे हैं, लेकिन टाइम बहुत होता है, और काफ़ी लोग 3 महीने को बहुत ज़्यादा मान के चल रहे हैं. उनको बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा नहीं है, जल्दी जल्दी निकल जाएगा. थैंक यू.